کچھ لوگوں کو دیکھ کر تو پہلی ہی نظر میں محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے بڑے ہی پسندیدہ ہیں، یعنی ہر لحاظ سے نوازے گئے، کھلی حلال کمائی، بڑے دل والے لوگوں کے کام آنے والے، خوش اخلاق، خدا ترس، دیکھنے سننے میں اچھے، تعلیم، خاندان، صحت، شکل و صورت کون سی نعمت ہے جو نہیں ملی ہوئی، اور پھر دوسری بار ان پر غور کریں تو کتنا عجیب لگتا ہے کہ اس قدر ہر طرح سے نوازے گئے اس مرد کو بھری دنیا میں کوئی اللہ کی بندی نہ ملی کہ جس کو وہ نوازی گئی ان نعمتوں میں اپنا حصہ دار بنا سکے۔ یہ نہیں کہ شادی محض ایک ضرورت ہے، بلکہ یہ بھی تو ہے کہ ایک اس عمل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی عمدہ، خوبصورت اور دل گداز سا فلسفہ رکھ چھوڑا ہے۔ ایک مرد کے لیے یہ کتنا اچھا اور دل فریب احساس ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جیتے جاگتے، سانس لیتے، دل رکھتے انسان کی کفالت اپنے ذمہ لے رہا ہے، نہ جانے کتنے ہی مدد کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کچھ جو صرف نظروں سے اپنی ضروریات بیان کرتے ہیں، پھر بھی اب اس قدر تو ان کے لیے نہیں کرتے کہ اپنے ہر مال و دولت میں اس کو حصہ دار ہی بنا ڈالیں۔ صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں تو ایک حد تک صرف وہ ایک عورت ہوتی ہے جس کو آپ اپنے نکاح میں لیتے ہیں، اور اس طرح وہ آپ کی زندگی میں شامل ہوتی ہے کہ آپ کے وقت، دولت، صحت، عزت اور گھر تک میں آپ کی باقاعدہ حصہ دار بن جاتی ہے، اور آپ اس کی پوری ذمہ داری لیتے ہیں۔ اس کی عزت، اس کا رکھ رکھاؤ، جنسی خوشی، سب کچھ آپ سے منسوب ہوتا ہے۔ بہت حیرت ہوتی ہے اس طرح کے مکمل مردوں کو دیکھ کر جو شادی کے نام سے کترانے لگتے ہیں یا اپنے بڑوں کے شادی کرنے کی تلقین کرنے پر طنزیہ کہا لگاتے ہیں۔ آخر اس میں کیا راز ہے؟ آخری جملے پر اس نے نظریں جھکا لی تھیں، گو اب تک اس پورے لیکچر کے دوران اس نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، مگر میں جانتا تھا کہ وہ مخاطب مجھ سے ہی تھی۔ میں مسکرایا۔ یہ جو طنزیہ کہا لگانے والی بات اس نے مجھ پر ہی کی تھی، اس کا جواب دینا تو لازمی تھا۔ اس جملے نے ہی تو محفل میں بننے والے اس چھوٹے سے حلقے میں اس کی بات سننے والے ہر ایک کو میری ہی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ شاید اس لیے کتراتے ہوں کہ ایک عورت جس کو وہ عزت و احترام کے ساتھ اپنی زندگی میں شامل کریں اور جس کی کفالت بھی اپنے ذمہ لے لیں، اور وہی عورت احسان مند ہونے کے بجائے نہ تو شوہر کی عزت کا خیال کرے نہ ہی شوہر کے گھر والوں کا، بلکہ الٹا یہ جتانے میں لگ جائے کہ شادی کر کے اس نے احسان کیا ہے۔ میرے بروقت جواب پر چند ایک شادی شدہ مردوں نے بڑی ہی خوبصورتی سے اپنے ہونٹوں پر بے اختیار آتی مسکراہٹ کو چھپا لیا، جبکہ ان کے ارد گرد منڈلاتی ان کی بیگمات نے بے چینی سے پہلو بدلا، اور اب باقاعدہ محفل کی توجہ اس کی طرف پلٹ گئی تھی۔ محبت سمیت سب کو اس کے جواب کا انتظار تھا۔ آزمائش صرف پیسے، عزت اور صحت کی نہیں ہوتی۔ میں تو یہ جانتی ہوں کہ ہر نعمت جو ہمیں دی گئی ہے زندگی کے کسی موڑ پر کہیں نہ کہیں اس کی آزمائش بھی لازمی ہوگی، اور حسن سلوک کی عادت بھی ایک نعمت ہے جس کی آزمائش یہی ہوگی، نہ کہ ہمیں ہر دم کوئی ایسا ٹکرائے جو ہمارے مزاج پر بھاری پڑے، جو ہماری برداشت کو آخری حد تک آزمائے۔ کیا معلوم وہ عورت اپنے شوہر کے حسن سلوک کی آزمائش ہو؟ میں لاجواب تو نہیں ہوا تھا، مگر اس سے بحث در بحث کرنے کا ابھی ارادہ بھی نہیں رکھتا تھا، کیونکہ میں اس کے منجھلے بھائی کی بیوی کو ہمارے حلقے کی طرف آتے دیکھ چکا تھا، اور یہ تو ہم سب ہی جانتے تھے کہ اگر اس کی بھابھی نے اسے اس طرح ہم سب سے بے تکلفی سے باتیں کرتے دیکھ لیا تو اس کے ساتھ محفل میں ہی وہ سب ہو جائے گا جو اکثر اوقات شرارتی بچوں کے محفل میں بدتمیزی کرنے کے بعد گھر جانے کے ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ میری دونوں بڑی بہنیں بھی اپنے شوہروں کو لیے تیزی سے حلقے سے نکل گئیں۔ اس کی بھابھی طنزیہ سی مسکراتی ہم کچھ بچے ہواہے پر نظریں ڈالتی آگے بڑھ گئی۔ اس کے سامنے سے گزرنے پر شاید اسے بھی ہوش آیا، اور وہ بھی برقی رفتاری سے اٹھ کر ہم سب سے اجازت معذرت کیے بغیر اسٹیج کی طرف چلی گئی، جس کے ارد گرد سجے صوفوں پر اس کے خاندان کے بقایا لوگ بڑے ٹھسے اور روب سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ہم دونوں خاندانوں میں کئی سالوں سے ملنا ملانا تو کیا سلام دعا تک بند تھی، وجہ اس کی وہی جو عام رشتہ داری میں ہوتی ہے۔ دونوں طرف لڑکیاں تھیں اور لڑکے بھی، اور دونوں طرف صرف لڑکوں کو حاصل کر لینے کی خواہش تھی، جبکہ لڑکیوں سے ہر ممکن اجتناب برتا جاتا تھا۔ ایک دو بار بڑی مصیبتوں اور جتن کے ساتھ کسی لڑکے اور لڑکی نے اپنے والدین کی پسند ناپسند کو نظر انداز کر کے اگر رشتے کی بات چلانی بھی چاہی تو اس قدر ہنگامہ، فساد اور جھگڑا ہوا کہ شادی تو دور کی بات ناچاقی دو چند ہو گئے۔
हैरत भी होती भी कि क्या एक माँ के दो बच्चे आपस में सगे भाई बहन के दरमियान जिंदगी में इस कदर दूरियां भी आ सकती हैं कि एक दूसरे की औलादों से नफरत महसूस होने लगे। फूफी जान वैसे तो काफी समझदार, पढ़ी लिखी और बुर्दबार थीं, मगर न जाने उनकी सारी अक्लमंदी और दानाई एक हमारी उम्मी जान के सामने आते ही जैसे पाताल में जा गिरती। इस तरफ उम्मी जान का भी ऐसा ही कुछ हाल होता। ख्वातीन की हाँ में हाँ मिलाने के लिए उनके जवान होते कुछ बच्चों ने भी अपना अपना किरदार भरपूर निभाया। ऐसा नहीं कि ये नाचाकी हमेशा से थी। मुझे याद है जब मैं शायद 8वीं में पढ़ता था तो उम्मी जान मुझे तैयार करके बहुत से तोहफे, तहाइफ और मिठाई वगैरह लेकर फूफी जान के यहाँ पहुंची थीं, जिनके यहाँ 4 बेटों के बाद एक बेटी आई थी। ये वो दौर था जब दोनों खानदान एक दिल दो जान थे। उम्मी जान अपनी नंद पर जान छिड़कती थीं और नंद भी भाभी जान करते न खुलती थीं। मुझे से बड़ी 2 बहनें और फूफी जान के 4 बेटे घुल मिलकर बैठा करते थे, और तब ही का वो चंद सालों का दौर था जब मैंने फूफी जान के यहाँ इसे दूध पीती बच्ची से बड़े होकर पांव पांव चलते देखा। उम्मी जान मुझे हमेशा साथ रखती थी, लिहाजा फूफी जान के यहाँ आने जाने में भी मेरा नागा नहीं हुआ। इसके चंद सालों तक हमारे दरमियान ऐसा ही भाईचारा रहा, और फिर फूफी जान के बड़े बेटे के सलमान भाई की तरफ से जब बड़ी बाजी के लिए पहली बार पसंदीदगी के इशारे मिलने शुरू हुए तो जैसे फूफी जान की जबान में भी कांटे उगने लगे। माना सलमान भाई बड़े ज़हीन, सेहतमंद और मजबूत मुस्तकबिल के हामिल नजर आते थे, मगर बड़ी बाजी भी कुछ कम खूबसूरत और हंसमुख न थी। फिर भी फूफी जान को न जाने अपने भाई की सबसे बड़ी बेटी में ऐसा कोई गिन नजर न आया कि जिसकी बदौलत वो उनकी बहू बन सकती। बस फिर यही वो दौर था जब पहली बार दोनों खानदानों में घुमसान की जंग छिड़ गई। चंद सालों एक दूसरे की शक्लों से बेजार रहने के बाद फूफा जान के इंतकाल पर उम्मी जान को फूफी जान से एक बार फिर मीम बड़ी बाजी और सलमान दोनों की किस्मत का फैसला भी उनके वालिदैन की मर्जी से हो चुका था, लिहाजा मैदान भी साफ था। मगर कब तक रहता, एक बार फिर फूफी जान के तीसरे नंबर के साहिबजादे यान भाई को हमारे घर में अपना महबूब नजर आने लगा, और एक बार फिर फूफी जान ने बड़ी नखवत से बेटे की ख्वाहिश को रद्द कर दिया, और नतीजे में दोनों खानदान एक बार फिर जुदा हो गए। दूसरी बार की जुदाई का दौर मेरी गैर मौजूदगी में आया था। इससे पहले मैं बड़ा बन ठन कर लंदन मुझे पढ़ने के सिलसिले में जाने की खुशी में फूफी जान के यहाँ बाकायदा अपने खानदान समेत खाने पर मदऊ भी किया गया था। लंदन में रहाइश के दौरान भी उम्मी जान ने एक दिन मुझे रोते हुए फूफी जान का यूं यान भाई का मंजली बाजी के लिए रिश्ते के ठुकराने का बताया था। मैंने उम्मी जान को समझाने की कोशिश की थी कि जब उनको मालूम है कि फूफी जान इस एक बात पर खुश नहीं होती तो आखिर उम्मी जान ही इस एक बात को बार बार क्यों छेड़ती हैं। उम्मी जान का ख्याल था कि दोनों खानदानों में इत्तेफाक की एक ही सूरत है, जबकि हमेशा इसी एक सूरत के पैदा करने की कोशिश में दोनों खानदानों के दरमियान इत्तेफाक को बुरी तरह नुकसान पहुंचा था। मेरे लंदन से पढ़ाई मुकम्मल करके वापस आने पर उम्मी जान और फूफी जान में पुरानी दोस्ती जैसा तो कुछ ना बचा था, मगर ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी कि मलना मिलाना ही बंद हो। किसी मुश्तरका रिश्तेदार की महफिल में मुलाकात होती तो दोनों अच्छे से बातचीत कर लेती। मेरे आने के बाद फूफी जान ने बकौल उम्मी जान कई सालों बाद हमें अपने घर मदऊ किया था। मैं, मेरी दोनों बड़ी बहनें जवाब शादीशुदा थीं और मुझसे छोटे 2 भाई सभी तो खुशी खुशी फूफी जान के घर जा पहुंचे थे। वहां भी बेहद वालेहानापन से हमारी खातिरदारी हुई, और तब मुझे महसूस हुआ कि अब की बार भी हमारे खानदान में जुदाई करीब है, क्योंकि फूफी जान मुझ पर वारी सदके जा रही थीं। मैं इस बात पर काफी हैरत ज़दा हुआ था जब उम्मी जान को फूफी जान के इस वालेहानापन पर बेहद खुशी हुई थी। उन्होंने तो वापसी पर बाकायदा जीनत के हाथों को अपने हाथों में लेकर बहुत तकद्दुस से चूमा भी था। मगर क्या करते कि जिंदगी के इस डरे में विलन भी कहीं न कहीं से किसी न किसी सूरत टपक ही पड़ते हैं। बड़ी बाजी बेहद खफा थीं, और उनकी ही बार बार की तलकीन और याद दहानी के सबब जीनत हमारे घर की जीनत ना बन सकी। मैं चंद सालों के लिए एक अच्छी नौकरी के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया आया ही था कि उम्मी जान ने मुझे जीनत की शादी का बताया। उनको डर था कि मैं परदेस में अकेला इसकी शादी की खबर सुनकर कुछ कर ना बैठूं। मुझे अपनी माँ की मासूमियत पर हंसी आई और 1-2 बार अपने दिल को टटोला। ऐसा क्यों था कि मैं तो कुछ भी महसूस नहीं कर रहा था, मगर मुसलसल मेरे अर्द गिर्द मौजूद हर किसी को मेरी बेहद परवाह हो रही थी। खैर, दिन गुजरने थे, गुजर गए।
अम्मी जान के इंतकाल पर मैं कई सालों बाद पाकिस्तान लौटा। इस खानदान में भी अब ऐसा कोई नहीं बचा था कि जो दुश्मनी होने पर भी कभी कभार ही सही शक्ल दिखा जाए। अब जो कुदूरत फूफी जान के बच्चों ने अपने दिल में हमारे लिए पाली थी, इससे ज्यादा मेरे भाई बहनों के दिल में उनके लिए थी। मगर हाँ, ये बात भी थी कि बड़ी बाजी समेत अब हम सब में मुश्तरका तौर पर यह बात तस्लीम की जाती थी कि फूफी जान के खानदान में एक शख्सियत ऐसी जरूर है जिसके दिल में हमारे वालिदैन और हम सब के लिए अभी भी वैसी ही मोहब्बत और इज्जत है जैसी उम्मी जान और फूफी जान के दरमियान थी। इसकी बाकायदा कई ठोस वजूहात थीं। पहली तो ये कि अक्सर हम लोग अपने मुश्तरका रिश्तेदारों से सुनते कि जीनत अपनी मुमानी जान मामू जान यानी मेरे वालिदैन को याद करते रो पड़ती है। कभी यूं भी होता कि उम्मी जान बाबा जानी की बरसी के मौके पर उसका फोन आ जाता, फिर दुआ का कोई एहतमाम जिसमें बाकायदा उम्मी जान और बाबा जानी के लिए खुसूसी दुआ करवाई जाती। जीनत की शख्सियत हमेशा से ही ऐसी थी, असख्त गिर शौहर की बदौलत वो नरम पड़ गई थी। इसका तो मुझे अंदाजा नहीं, क्योंकि सच बात तो यह है कि मैंने भी इसे एक इंसान, एक औरत लड़की के रूप में जांचने की कोशिश ही नहीं की। वो तो बस उम्मी जान की पसंदीदा बच्ची थी, बहुत नाजुक और हसास दिल वाली, फौरन नरम पड़ जाने वाली। अमूमन ऐसे लोगों के दिल साफ शफाफ होते हैं, बहुत ज्यादा कठिन और ट्रेई मिजाज के भी नहीं होते। और शायद इसने ठीक ही कहा था कि आजमाइश तो दिए गए हर जज्बे हर नेमत की होगी, तो फिर इस जैसी नाजुक दिल की लड़की को अगर बदमिजाज, बददिमाग और अक्खर शौहर मिल गया था तो यकीनन ये इसके साफ शफाफ दिल की आजमाइश ही तो थी। पाकिस्तान आने के बाद में इसके शौहर की आए दिन की बदतमीजियों के बारे में सुनकर खामोश रहता था। अक्सर ही रिश्तेदारों में इसके शौहर की हालिया किसी बदतमीजी का जिक्र छिड़ जाता। मजे की बात यह थी कि अपनी उन हरकतों का प्रचार भी वो खुद ही तमाम रिश्तेदारों को फोन करके करता था। उसने चंद ऐसे रिश्तेदारों को खास तौर से फोन करना होता जो उसकी नज़र में उसकी बीवी जीनत उसकी बीवी के खानदान से खार रखते हों। यूं बड़ी बाजी इसके लिए बहुत अहम थी। हर 2-4 दिन बाद बड़ी बाजी को फोन करके किसी कमजात घराने की लड़ाका औरत की तरह जीनत के साथ की गई अपनी हालिया बदतमीजी का मजे से तज़किरा करना ना भूलता। वो समझता था कि शायद ये सब बातें हमें मसरूर करेंगी और हम सब जीनत की ऐसी दुर्गत पर दिल से खुश होते होंगे। बड़ी बाजी भी परेशान थीं। कई बार मना करने के बावजूद वो फोन करने से बाज न आया। एक रोज इत्तेफाक से मैं भी बड़ी बाजी के घर पर मौजूद था। बड़ी बाजी के पास फोन आया तो उन्होंने चंद लम्हे सुनकर बेदिली से फोन मुझे पकड़ा दिया। मकसद ये था कि शायद किसी मर्द को बात करता सुनकर वो शर्मिंदा होकर फोन जल्दी से बंद कर देगा। मगर मेरा नाम सुनते ही इसको तो जैसे पतंगे लग गए, यानी वो मेरे और जीनत बारे में जानता था। अब तो उसने ऐसी ऐसी अंदरूनी बातें करना शुरू कर दी कि जीनत का कजिन होने के नाते तो किया, एक मर्द होने के नाते भी मुझे बड़ी गैरत आने लगी। मैंने इसे बुरी तरह झड़क दिया और ये कहकर फोन बंद कर दिया कि इसका साथ जीनत के बद किस्मत होने की दलील है। इस दिन तो हम सब भाई बहन बड़ी बाजी के यहाँ खाने पर मदऊ थे और हमेशा की तरह मेरी दोनों बेओज और बड़ी बहनें मुझसे शादी कर लेने जैसे हंसी मजाक में मसरूफ थीं। मगर दूसरे ही दिन सुबह मुझे बड़ी बाजी का फोन आ गया और उन्होंने गंभीर आवाज में मुझसे बाज पर्स शुरू कर दी। हुआ यूं कि मेरी बात सुनकर जीनत के शौहर ने इसे घर से निकाल बाहर किया और अब इसकी जिद थी कि जब तक मैं इससे हाथ जोड़कर मुआफी ना मांगूं वो जीनत को वापस नहीं बुलाएगा। इधर जीनत के घर वाले एक बार फिर हम सब भाई बहनों पर बिगड़ रहे थे। मामलात की संगीनी का एहसास हम सबको था, मगर मैं किसी भी तरह ऐसे शख्स से मिलना नहीं चाहता था जो फोन पर इस कदर खिले अल्फाज में जीनत के बारे में ऐसी मुगल्लज़ात बिक सकता हो। वो मेरे सामने किया ना कहेगा और फिर मैं कहाँ तक खुद को रोक सकूंगा। मुझे खुद पर पहली बार हैरत हुई थी। वैसे मैं अब तक खुद को बहुत ठंडे मिजाज का शख्स समझता था, मगर ये अजीब बात हुई थी कि जीनत के बारे में ऐसी वैसी बात के शुरू होते ही मेरा मिजाज गर्म हुआ था। बहरहाल मैंने बड़ी बाजी, भाइयों बहनों और दीगर रिश्तेदारों के इसरार पर भी मिलने से साफ इनकार कर दिया और यूं जीनत बकौल उसके घर वालों के अब तक मैके में विराजमान थी। मगर ये बात अब बहुत हद तक वसूख से भी गर्दिश कर रही थी कि जीनत को इसके शौहर ने इस दिन तलाक देकर भेजा था और मेरी मुआफी और शौहर से मिलने वाली बात महज इसके शौहर की एक शरारत थी। जीनत ने चंद दिनों गुमसम रहने के बाद अपने भाई बहनों को खुद पर गुजर चुके सानिहे के बारे में बता दिया था
اور اس के घर वाले किसी न किसी पर जीनत की तबाही की जिम्मेदारी डालने पर तले हुए थे और मुझसे बढ़कर अच्छा हदफ उनको कोई मिला नहीं था। इस बात को आज महफिल में एक बार फिर इस तरह बावर कराया गया कि जैसे ही हमारा खानदान हाल में दाखिल हुआ, जीनत के खानदान वाले हम सबसे कतरा के स्टेज के पास सजे सोफों पर जा बैठे थे। जीनत के उठकर जाने पर मैं सोच में डूब गया था। उसने आज बाकायदा आकर मुझे ये क्यों समझाने की कोशिश की थी कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए। क्या वो खाइफ थी? मुझे इतना तो अंदाजा था कि 4 भाइयों के दरमियान एक तलाक याफ्ता बहन को किया कि सहना पड़ता होगा, जबकि इसके माँ बाप भी ना हों। ऐसे में छोटे से छोटा स्कैंडल भी इसके खानदान में उसके कमजोर और नाजुक मकाम को बहुत नुकसान पहुंचा सकता था, मगर वो मुझसे ही क्यों डर रही थी। मैंने तो अब तक के रिश्तेदार के सामने इसके बारे में पूछ-गुछ न की थी। इसे जब मैंने पहले कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाया तो अब कैसे पहुंचा सकता था। हाँ, ये अलग बात कि बड़ी बाजी को आजकल इस पर कुछ ज्यादा रहम आने लगा और वो हर दम इसके बारे में मालूमात इकट्ठी करती रहती थी, और उन्होंने ही तो मुझे इसकी अलहदगी के बारे में भी बताया था। खाने का वक्त हो चुका था और लोग चंद लम्हों में ही खाना खाने में मगन हो चुके थे। जीनत एक खाली मेज के पास अकेली नजर आई तो मुझे मौका मिल गया। मैं इसके पहलू में पहुंचा ही था कि मेरे मुंह से निकल गया, मैं शायद चंद दिनों बाद वापस ऑस्ट्रेलिया निकल जाऊं। उसने बेइख्तियार पलटकर मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में नमी आई थी, या मुझे धोखा हुआ था। बहरहाल उसने फौरन ही मुझसे नजरें फेर ली थीं। चांद ग्रहण बहुत छोटे से वक्फे के लिए ही ज़हूर पजीर होता है, मगर बस वही लम्हा होता है चांद से सूरज के मिलाप का, और दोनों के इतने कम से वक्त के मिलाप पर भी जमीन वालों में खलबली मची रहती है। कुछ सरासीमा और कुछ बेचैन रहते हैं। कौन जाने दोनों का मिलाप जमीन वालों के लिए कैसी ही आजमाइश ले आए। मैं अपनी ही बात पर हैरान हो गया था। ये मैं किया और क्यों कह रहा था, और वो भी इससे जिससे शायद कभी इस तरह की कोई बेतकल्लुफी नहीं थी। वो ज़ेर लब मुस्करा दी थी। बहुत शुक्रिया, 2 लफ्ज़ कहती हुई वो आगे बढ़ गई थी और मुझे बहुत बेचैन कर गई थी। जुदाई पर कोई किसी को शुक्रिया कैसे कर सकता है? हाँ, सिर्फ इस वक्त जबकि जुदा होने वाला कोई बहुत ही नामुनासिब और नापसंदीदा भी हो, जिसके जुदा होने से ही हमें सुकून मिलने की उम्मीद हो। मुझे पहली बार अपनी किस्मत के अच्छे होने पर शक सा हुआ था। चंद दिनों बाद मेरे वापस जाने की बात पर बड़ी बाजी बिला तामुल बिफर गईं। ये कैसे और क्यों करोगे तुम? इतनी बुज़दिली दिखाओगे अब? बड़ी बाजी के इस सवाल पर मैं हैरान हो गया। ऑस्ट्रेलिया जाना बुज़दिली है? मैंने पूछना चाहा मगर खामोश रहा। आजकल हर कोई मुझसे न जाने पहेलियों में क्यों बात करने लगा था। आखिर बड़ी बाजी ने ही बात बढ़ाई। चंद दिनों बाद जाना है तुमको मेरे साथ फूफी जान के घर जीनत का बाकायदा रिश्ता मांगने। मैंने घबरा कर पहलू बदला। पहले की बात और थी। हम अपने वालिदैन की ख्वाहिशात के आगे मजबूर हुए। कभी अपनी ही खुद गर्जी में अपना नुकसान कर बैठे, मगर अब वक्त बदल गया है। तुम दोनों ने ही अपनी अपनी जगह बहुत कुछ आजमाइशें सहली हैं। बहुत मुश्किल हालात से गुजर चुके हो। मेरे ख्याल में अब तुम दोनों के ऊपर खानदान या रिश्तेदारों की बिलावजह की जोर जबरदस्ती कोई असर नहीं कर सकती। इन दोनों खानदान के मिलाप के लिए तुम दोनों का ऐसा ही मजबूत, ऐसा ही सख्त जान होना जरूरी था। मैं जीनत को जानती हूं। वो इस वक्त भी लड़ने की ताकत रखती थी अगर तुम्हारी तरफ से इसे मुस्बत इशारा मिलता, मगर अब तुमको ही हिम्मत दिखानी है। अब वो वक्त आन पहुंचा है। फिर वो मुझे बहुत ही तफसील और सहूलत से एक बात समझाने लगे, और मैं ये बात सोचकर हैरान हो रहा था कि किस कदर मुश्किल लगता है, मगर इतना ही आसान है इंसान के लिए पुरानी रंजिशें भुला कर नए सिरे से रिश्तों को जोड़ना।